We will try to finish the numerical that I had left unfinished in the previous class. Let us revise what was asked in the numerical. 3,000 Newton block was there. Okay, the figure is not very clear. I'll just take it down here. 3,000 Newton block. There is a spring attached at the bottom. This is some plate or some board at which the spring is attached. So this board can move up and down the inclined plane. The distance between the board and the mass is 2 meters initially. The mass is at rest. It will be released, and when it is released, it will travel downwards while increasing its velocity. Eventually, it will strike the board, and once it has contacted the board will move downward, thus compressing the spring. The first part of the problem was already solved by us. Determine the maximum deformation of the spring. That was already done by us. And the maximum velocity of the block. Now, this is the part that we had left unfinished. Although the solution is provided here, but still, if some doubt persists in your mind, I will just clear it out by finishing it over here. Maximum velocity of the block. As we discussed yesterday, intuitively, it would seem that the maximum velocity of the block would be achieved at this point, exactly before striking the board. But that is not the case. As I told you, if you draw a graph between velocity and time, or let us say not with respect to time, with respect to x, then you will eventually find that the velocity increases as x is increasing from the initial position downwards. And let us say this is the instant at which the object strikes the board. Now, this is where we expect the maximum velocity to be, but that is not the case. After contacting the board and after the compression of the spring starts, the velocity keeps increasing for a little bit more still, and then it starts decreasing rapidly. So this is the problem in the analysis. Our mind, our intuition tells us कि भाई जब तक ये मास फ्रीली नीचे को आ रहा है तब तक तो इसकी वेलोसिटी में कोई अवरोध नहीं आ रहा. ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन का कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस है, बट दैट इज द ओनली रेजिस्टेंस. So we expect that the maximum velocity will be at the time of striking, because as soon as it strikes, now the spring starts exerting an opposite force. तो जब ऑपोजिट फोर्स के आने से पहले तक ही कोई मैक्सिमम वेलोसिटी मिलने की गुंजाइश अपन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ओनली द मैक्सिमम वेलोसिटी इज रीच्ड. सो हाउ डू यू गेट टू दिस पॉइंट? इसका कैसे अनुमान लगाते हैं? तो बेसिकली अपन क्या कहते हैं कि आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है. ठीक है. और आपने ये भी कहा, आई विल रीड्रॉ द फिगर, कि ब्लॉक यहां पर जीरो वेलोसिटी पे था. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो. And the spring is eventually going to get compressed, and let us say there will come a point after the compression of the spring at which velocity is again going to be zero. यानी कि ये मास जब eventually इस spring को इतना compress कर चुकी होगी तो ये फिर से रेस्ट पे आ जाएगा. तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये इन दोनों जीरो वेलोसिटी पॉइंट्स के बीच में कहीं पर है. नाउ दैट इज व्हाट यू वांट टू नो, और ये हम पता कर चुके हैं कि यहाँ पर तो नहीं है. So that means the maximum velocity point has to be somewhere in between this line and this line. Now that is what we want to know. तो उसका simple सा physics
और मैकेनिक्स की जो लॉजिक है वो ये कहती है कि इफ you want to find out where velocity is getting maximized, you simply apply this formula. The point during the journey, wherever dv by dt becomes equal to zero, that is the point at which velocity will be maximum. तो अपन को वो लोकेशन पता करनी है जहां पर dv by dt जीरो होता है. But now extending our logic, dv by dt क्या चीज है? It is acceleration, linear acceleration. Now, basically, you are saying that velocity will be maximum when acceleration is equal to zero. Yes, exactly. Acceleration zero होगा तो velocity maximum होगी. आगे चलें, acceleration के zero होने का क्या मतलब है? Newton's second law says that whatever the sum of all the forces acting on the body is at any instant of time, स्प्रिंग से कांटेक्ट में हो चाहे नहीं हो, किसी भी सिचुएशन में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अब आपने कहा कि वेलोसिटी तब मैक्सिमम होगी जब ए जीरो होगा. ए जीरो होगा, इसको जीरो पुट कर दिया तो m इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो गया. तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जब जीरो होगा तब एक्सेलरेशन जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो v मैक्स है. तो अब इस एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक को लेते हुए अब मैं एक नया फिगर बनाऊंगा. लेट अस से दिस इज अ न्यू फिगर दैट आई एम ड्राइंग. ठीक है, कि अभी ये बोर्ड को इसने बॉडी ने कांटेक्ट कर लिया है और ये बोर्ड कितने डिस्टेंस से दबी थी. ये ओरिजिनली ये बोर्ड यहां था. सो लेट अस से द बॉक्स और द ब्लॉक हैज मैनेज टू कंप्रेस द बॉडी और कंप्रेस द स्प्रिंग बाय अ डिस्टेंस लेट अस से x. अब ये x जो है ये वो x नहीं है जिसपे की बॉडी रेस्ट पे आई है. अब ये वो x है जिसपे वेलोसिटी मैक्सिमम है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ओके, नाउ व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट दिस पॉइंट. तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस ब्लॉक का, तो ऑब्वियसली म्यू इंटू आर इज एक्टिंग बैकवर्ड्स. नीचे को mg sin 50 is obviously acting. और स्प्रिंग कितने से दबा है? x से दबा है. तो स्प्रिंग इसको पीछे को कितनी फोर्स लगा रहा होगा? द फोर्स exerted by the spring as I told you yesterday is always equal to half of kx square, क्योंकि ये x डिस्टेंस से दबा हुआ है. तो अभी करंटली इस ब्लॉक पे ये तीन फोर्सेस लगी हुई है. ठीक है, और इस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि v मैक्स है. तो यानी कि इस कंडीशन में जब इस पे ये तीन फोर्सेस लग रही हैं तो v मैक्स है तो एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो है तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो है. So now all that you have to do is, what are the forces currently acting on this body? First force is mu r, second force is half kx square, and the third force is mg sin 50. Now all you have to do is give the proper sign to these forces, add them up to make summation f and put it equal to zero. ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या आपको? प्लीज रिस्पॉन्ड. Anybody who has been listening, please tell me, क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ. अपन वी चलो. मैक्स क्लियर हुआ? यस सर. Okay, so now let us simply apply the equation summation of f equal to zero. ठीक है, mg साइन अपन ने नीचे की डायरेक्शन को पहले से ही पॉजिटिव मान के चला है. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अब ये नई इक्वेशन बना रहे हो तो इस इक्वेशन में ऊपर की साइड को पॉजिटिव मान लो. इट डज नॉट मैटर एट ऑल. ठीक है, तो अब देखें, एक फोर्स तो है नीचे को, दैट इज mg sin 50. ऊपर की दोनों फोर्सेस को मैं नेगेटिव मान लेता हूं.
माइनस म्यू आर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. दिस इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब म्यू की वैल्यू आपको पता है, इट इज 0.2. एम जी कितना है, 3000 है. सो दिस इज 3000 साइन 50 माइनस म्यू इज 0.2. और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है ब्लॉक की, ये अपन ने कल एक डायग्राम बनाया था. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड द डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ mg is mg cos 50. And since there is no motion taking place in this direction, we directly conclude that r must be equal to mg cos 50. तो r की वैल्यू mg cos 50 है, जिसमें mg फिर से 3000 है. सो म्यू इंटू आर इज 0.2, तो म्यू है. r जो है इंटू 3000 यानी कि mg cos 50, ये भी हो गया. माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जिसमें के की वैल्यू भी अपन को कल दे रखी थी. के वी फाउंड आउट वाज 20,000 न्यूटन पर मीटर. ये सारी चीजें इसमें रखें, इसमें एक ही अननोन है. यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कि किस एक्स पर आपकी डिस्टेंस, सॉरी, किस डिस्टेंस पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम आती है. यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, लेकिन अपन को तो वी मैक्स निकालना था. अपन को मिला क्या है, अपन को वो लोकेशन मिली है जहां पर वी मैक्स आ रहा है. तो अब वी मैक्स कैसे निकाल, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू री अप्लाई एनी ऑफ द एनर्जी इक्वेशंस. या तो बैलेंस यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, या फिर अ, आपकी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाओ. इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन वापस से लगानी पड़ेगी जब ब्लॉक ने इसको x डिस्टेंस से ऐसे कंप्रेस किया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है. नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ x. ये देखो, इन्होंने यही सेम इक्वेशन रख करके सॉल्व किया है. अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज यू हैव टू मेक अ करेक्शन. सिंस वी आर इक्वेटिंग द फोर्सेस, भाई यहां पर के एक्स आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं आएगा. दिस इज वन मिस्टेक, ये मैं भी भूल गया. हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, वर्क डन है. और के एक्स क्या है, फोर्स है. और अपन यहाँ पे फोर्सेस को इक्वेट कर रहे हैं, वर्क को इक्वेट नहीं कर रहे. सो प्लीज मेक अ करेक्शन. दिस विल बी माइनस के एक्स. स्प्रिंग की फोर्स, आप किसी भी स्प्रिंग को, एक ओपन स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर आप एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस करते हैं, तो वो स्प्रिंग आपके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, the force that the spring exerts back on you is always given by k into x. ठीक है, और ये के एक्स जो है, इसकी डायरेक्शन चूंकि उस दिशा में है, तो इसीलिए अपन ने माइनस लिया है. दिस इज नॉट हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज के इंटू एक्स. ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आई आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक. के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर जो स्प्रिंग का लेते हैं, वो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग है. अपन यहाँ पे फोर्सेस की इक्वेशन बना रहे थे, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग तो के एक्स होती है. एनीवे, वी हैव रेक्टिफाइड दिस, बट द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें सिर्फ एक x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप सॉल्व करके आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो. एंड व्हाट यू विल गेट इज योर x. सी, दिस इज योर आंसर, 95.62 millimeters. और योर आंसर if you solve it in SI units will be 0.09562 meters. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. यानी कि इस इतने कंप्रेशन जब स्प्रिंग का हो चुका होगा, तब आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच होगी. नाउ वी हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी इक्वेशन वंस अगेन, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. क्योंकि आपके पास में वेलोसिटी टर्म इंक्लूड करते हुए कोई इक्वेशन होनी चाहिए ना, तभी तो वेलोसिटी निकलेगी. तो अब अपन ये करने जा रहे हैं,
कि इस पे वापस से वही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। तो इस पे नीचे को mg sin 50 लग रहा है, वही सेम। पीछे को म्यू आर लग रहा है, वही सेम। एक्स डिस्टेंस से कंप्रेशन हुआ है और एक्स से पहले 2 मीटर का फासला है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या करती है, अब की बार अपन को वर्क डन निकालने सारे फोर्सेस के। तो एक्स डिस्टेंस तक स्प्रिंग को कंप्रेस करने में mg sin 50 ने कितना वर्क किया, कोई बता सकता है क्या? कैन एनीबडी टेल मी how much work was done by mg sin 50 force in traveling from this point to this point? mg sin 50 2 + x. Yes, mg sin 50 इंटू 2 + x, वर्क तो इसने किया। म्यू आर ने कितना वर्क किया? -μr 2 + x. ये भी हो गया। और कोई वर्क आ रही है क्या इसमें? सर ये स्प्रिंग स्प्रिंग ने जो किया है, स्प्रिंग का वर्क बताओ कितना है? 1 - 1/2 kx². वेरी गुड, सारे वर्क हो गए। अब इस टोटल वर्क को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस in traveling from this point to this point, then this must be equal to the final kinetic energy minus initial kinetic energy। अब देखो, अब की बार ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन एक्स लिया है, आपने वो डिस्टेंस लिया है जहां पर वी वी मैक्स हो जाती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 इज हाफ ऑफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. ये जीरो है क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो आप जब इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करोगे, दिस विल कम आउट एज हाफ ऑफ, अब m की जगह पे मैं लिख देता हूं 3000/g इंटू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अब ये इक्वेशन आपके सामने बन गई है। x की वैल्यू अब अननोन नहीं है, x आपने यहां से निकाल लिया है, विच इज दिस। द वैल्यू ऑफ x इज दिस नाउ। अब इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने इधर वापस से जो लगाया है, यहां पर x पुट किया, यहां पर x पुट किया, यहां पर x पुट किया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा एक नंबर के फॉर्म में निकल के आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में सिर्फ इतना सा बैठा है। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज हाउ यू फाइंड द वेलोसिटी। ये इन्होंने इसमें सॉल्व करके दिया हुआ था, बट आई थॉट कि हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। तो आपको समझ में आया ये कैसे किया है अपन ने पूरा प्रॉब्लम? वही सेम प्रिंसिपल लगी हैं जो अपन पहले से सीखते आ रहे हैं इसमें। वर्क एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और कुछ केसेस में आप वही काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम्स पे वापस चले जाते हो, कुछ केसेस में न्यूटन्स लॉ वापस से लगाना पड़ता है। तो अब जैसे इसमें आपने देखा कि इसमें न्यूटन्स लॉ भी लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो टोटल फोर्स को जीरो किया। काइनेटिक्स की प्रॉब्लम में आप ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि भाई मेरे को सिर्फ प्योर वर्क एनर्जी की कोई प्रॉब्लम मिलेगी, या सिर्फ प्योरली मेरे को कंजर्वेशन लगाने की प्रॉब्लम मिलेगी। प्रॉब्लम्स कैन बी इंट्रिकेट, एंड काइनेटिक की प्रॉब्लम बनेगी तो उसमें न्यूटन्स लॉ, डीएलेम्बर्ट्स लॉ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब हैंड टू हैंड चलती है। तो आपको सारी प्रिंसिपल्स का नॉलेज भी होना चाहिए, और जितनी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे उसके साथ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती जाएगी कि किस सिचुएशन में कौन सा यूज मैं करूं अभी। ठीक है, एनीवे ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम था, इसमें अपन ने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है। नाउ लेट अस कम टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में भी आप कुछ नई चीज सीखोगे, काफी नई चीजें सीखोगे। कम से कम दो तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सॉलिडिफाई कर देगी, या जहां तक मेरा मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने आने वाले हैं,
This would be something new for you. ठीक है. Now let us see, because now we are involving rotary motion and linear motion. ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है. ठीक है. Let us read the question. A 10 किलोग्राम सिलेंडर, 10 केजी इसका मास है. ठीक है. 10 किलोग्राम सिलेंडर बोला है, तो 10 केजी मास है, वेट नहीं है. और अगर इन्होंने 10 केजी वेट सिलेंडर दे दिया होता, तो वेट कितना लेते आप इसका? नहीं, वेट नहीं, मास कितना लेते? अगर मैं ये बोलता द वेट ऑफ द सिलेंडर इज 10 केजी, तो इसका मतलब है इनएडवर्टेंटली आई एम सेइंग दैट द वेट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम फोर्स. अब ये ध्यान रखिए, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, ये तो मास की यूनिट है, और किलोग्राम फोर्स वेट की यूनिट है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ, ये तो इन्होंने बस इतना कह दिया 10 केजी सिलेंडर, तब इसको तो आप सीधे मास मान लो. ठीक है. लेकिन अगर मैंने यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बोला होता अ सिलेंडर ऑफ वेट 10 केजी, तो इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूं. तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर वेट 10 केजी दे दिया, तो मास कितना लोगे? Divided by gravitational constant. नो, रॉन्ग. बताओ करेक्ट आंसर. ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके, क्लास में भी अब डिस्कस दिस. किसी चीज का वेट 10 किलो दिया है, उस चीज का मास कितना है? किसी को नहीं पता? Acceleration due to gravity से divide हुआ. नहीं करेंगे, गलत है. उसका मास 10 ही है. अब इस कंफ्यूजन को मैं वापस से आपके क्लियर कर देता हूं, बट नाउ रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम एंड डू नॉट फॉरगेट इट. किसी चीज का वेट अगर 10 केजी दे रखा है, तो इसका मतलब वेट इज इन किलोग्राम फोर्स. एंड वेन एवर द वेट इज गिवन इन किलोग्राम फोर्स, देन द मास इज द सेम न्यूमेरिकल क्वांटिटी इन किलोग्राम्स. अब मैं इसको वापस से बिल्कुल अंडरलाइंड क्लियर कट भाषा में बताता हूं. इसको याद रखें, किलोग्राम फोर्स में वेट दिया है तो मास उतना ही किलोग्राम होता है. ठीक है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 100 किलो है, इसका मतलब क्या है? वेट 100 किलो है, मतलब वेट इज 100 किलोग्राम फोर्स. व्हाट इज द मास? व्हाट इज द मास ऑफ अ 100. 100 किलो वेट ऑब्जेक्ट? कितना है? नहीं क्लियर हुआ? एक ऑब्जेक्ट का वेट है 100 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम फोर्स. ये किलोग्राम फोर्स करके कोई बोलता नहीं है. जनरली सिर्फ 100 किलोग्राम वेट बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब है 100 किलोग्राम फोर्स. इसका मास कितना है? 100 किलोग्राम. इसका मास 100 किलोग्राम. यस, द मास इज सिंपली, रिपीट द वैल्यू 100 केजी. अब देखो यूनिट चेंज हो गई है क्योंकि आप मास की बात कर रहे हो. अब इसमें मैं एफ नहीं लगा रहा. तो किसी भी चीज का वेट अगर किलोग्राम में दे रखा है, तो उसका मास उतना ही होता है. उसको कोई 9.81 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है. नाउ when do you multiply and divide with 9.81? Now we discuss the case. If the weight of an object is given by, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, मास कितना है? अब बताओ. यूनिट देखिए. नाउ यू डिवाइड बाय 9.81. ठीक है. भाई वेट क्या होती है? फोर्स होती है. और मास पूछ रहे हैं, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन करना पड़ेगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 है. तो 10 डिवाइडेड बाय 9.81 kg is the mass of an object whose weight is 10 न्यूटन. तो 10 न्यूटन के वेट का मास 10 बाय 9.81 kg है. ठीक है. अच्छा, अब
एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, इसका वेट किलोग्राम फोर्स में बताओ। 10। 10 किलोग्राम फोर्स। इसका वेट न्यूटन में बताओ। 10 × 9.8। 10 × 9.81 न्यूटन। अब क्लियर हो गया आपको पूरा इसका गेम, न्यूटन और किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम का। यस सर। अब मत भूलना इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आरटीयू में, हर जगह आपको धोखा देती है ये चीज। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट, ये क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट कि किलोग्राम, किलोग्राम फोर्स और न्यूटन का क्या रिलेशन है। एनीवे, लेट अस कम बैक टू द प्रॉब्लम। अपने पास 10 kg मास का सिलेंडर है। इन्होंने जब सिर्फ 10 kg सिलेंडर दिया, यू टेक इट एज मास। अच्छा, अगर मास नहीं भी होता, अगर ये वेट भी होता, तो मास तो वही होता ना, 10 kg होता ना। ये तो अब अपन को पता लग गया, चाहे वेट दे दो किलोग्राम में, चाहे मास दे दो किलोग्राम में, मास तो वही है। डायमीटर इज 2 मीटर। इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अंडर द एक्शन ऑफ 100 न्यूटन फोर्स। 100 न्यूटन फोर्स इस सिलेंडर के सेंटर पे लगाई गई है। और ये देखो, स्प्रिंग के आगे से एक थ्रेड गई है, एंड दिस थ्रेड इज वाउंड अराउंड द सिलेंडर लाइक दिस। ये इसमें क्वेश्चन में उतना क्लियर नहीं है, वरना ये आपको कैसे, आप इसको कैसे समझते, ये सिलेंडर के ऊपर को ऐसे स्प्रिंग रखते तो वो स्प्रिंग खींचेगी क्या? नहीं खींचेगी। सो यू हैव टू कंसिडर कि इसके आगे एक रोप या धागा है, और इस धागे को इस सिलेंडर पे ऐसे ही लपेट रखा है। नाउ इफ द सिलेंडर स्टार्ट्स टू रोल, व्हाट हैपेंस, ये धागा जो है आगे को, जैसे चरखे में धागा लपेटा जा रहा है, वैसे ये धागे को लपेटेगा और स्प्रिंग को खींचेगा। ठीक है। अब इसमें मास सिलेंडर में है, तो इसके रोटेशनल काइनेटिक्स और ट्रांसलेशनल काइनेटिक्स दोनों लगेगी। लेट अस सी हाउ। अ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ कॉर्ड दैट इज वाउंड अराउंड द सिलेंडर। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है, इसके ऊपर बाइंड कर रखा है। What is the speed of the cylinder after it has moved 50 centimeter? That means this, if you consider as position number one, then after moving some distance, the cylinder will come to another point. Let us say point number two, and the distance between these 2 points is 50 centimeters. अब मैं इसको सीधे मीटर में ही ले लेता हूँ, 0.5 मीटर ले लूं क्या? 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर है क्या? यस सर। ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन। तो अब मेरे को इस पे निकालनी है कि इस पॉइंट पे, इस पे कितनी स्पीड आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1 इज 0, नो डाउट, क्योंकि इन्होंने भले से कहा नहीं है, बट वी अज्यूम दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फाइनल पोजीशन पे v2 कितनी है ये निकालनी है। ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका मेरे हिसाब से तो इन सारे प्रॉब्लम्स में, जब तक आपको कहा नहीं जाए, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत लगाओ। हालांकि इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है, देख लो, देर इज नो फ्रिक्शन। विदाउट स्लिपिंग ये बस घूम रही है, कोई फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट नहीं दिया। सो दिस इज अ टोटली कंजर्व्ड सिस्टम। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स 100 लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सो अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही करो, मेरा सजेशन ये है कि यू गो फॉर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दैट विल प्रूव टू बी मच सिंपलर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को सबसे पहले बताओ इस पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स find the work done by all the forces and add them up between point 1 to point 2। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में आपके सिलेंडर पे जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पहले तो उनको पता करो। फिर उन फोर्सेस के कारण 1 से लेके 2 के बीच में जो वर्क हुआ है, उनको कैलकुलेट करके ऐड कर दो। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। पुट दैट इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर। ये कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। बट
In this question, this will be changed. टोटल वर्क डन निकालो 1 to 2 के बीच में, और उसको इसके बराबर नहीं रख सकते अब अपन। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज दिस इज अ केस इन विच रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज देयर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, वो इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक आया है, तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ mv² से। लेकिन ये बाकी के जो मास पार्टिकल्स जो इसके जो सिलेंडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दे आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑल्सो, सो देर इज अ पैरेलल काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। तो जब भी रोटेशन विथ ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम आती है, द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जीज, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं अपने जनरल एक्सप्रेशन को कभी भी हाफ mv1 mv2 माइनस हाफ mv1² नहीं लिख सकता। आई शुड ऑलवेज राइट एज काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल पोजीशन, या फिर अभी अपनी जो पोजीशन फाइनल है वो 2 है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट पोजीशन यानी कि 1। बट इन दिस एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी 2 हैज 2 कंपोनेंट्स। अब देखो कैसे लिख रहा हूं। पहला कंपोनेंट तो है हाफ mv2², और दूसरा कंपोनेंट है हाफ आई ओमेगा 2²। इन दोनों को ऐड करूंगा तब जाकर के मेरी फाइनल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट इज आल्सो हैविंग 2 कंपोनेंट्स। पहली तो लीनियर या ट्रांसलेशनल हाफ mv1² प्लस हाफ रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा 1²। अब हुआ ये पूरा। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में अपने कहीं पे भी रोटेशन से अपन का एनकाउंटर नहीं हुआ था। नाउ यू नो that the work energy principle remains the same, but if rotation is there, the expression of kinetic energy has to be taken as the sum of linear and rotational in both the instances। ठीक है? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस सर क्लियर है। अब अपन को बस ये इक्वेशन लगानी है। अब देखें इसमें और क्या क्या लॉजिक आता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा सुलझा लेते हैं। क्या इनिशियल स्टेट में कोई रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है क्या? ओमेगा 1 कितनी है इनिशियल? ओमेगा 1 मींस रेडियन पर सेकंड में रोटेशन की इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट नंबर 1 कितनी है, आप बताओ? 0। 0, क्योंकि यहां पर अभी खड़ी है ये, इसको खींचना स्टार्ट ही किया है जस्ट अभी। v1 कितनी है? 0। सो इफ यू टेक दीज टू क्वांटिटीज इन योर इक्वेशन, v1 0 है, ओमेगा 1 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 पूरी की पूरी 0 हो गई क्या? यस सर। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब अपन लेफ्ट साइड को तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, W1 to 2 इज इक्वल टू, नाउ आई ओनली हैव वन टर्म, और रादर 2 टर्म्स, हाफ mv2² प्लस हाफ आई ओमेगा 2² माइनस 0। ये पूरी चीज 0 हो गई, इसको लिखेंगे नहीं। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें ओमेगा 2 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्या करोगे? आपके पास में अब इक्वेशन ये है विच इन्वॉल्व्स v2 एंड ओमेगा 2, और आपको निकालने को क्या कहा गया है? यू हैव टू फाइंड v2। नाउ ओमेगा 2 तो अब जबरदस्ती की एक वेरिएबल आ गई आपके पास। अब क्या करें? आएगी, रोटेशन है तो आएगी, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। व्हाट डू यू डू? कैन एनीबॉडी सजेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन v2 एंड ओमेगा? बताओ। Sir, we can change omega into v is equal to r omega in terms of velocity. यस, आप ये कह सकते हो कि अगर किसी डिस्क की रोटेशन की स्पीड ओमेगा है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ट्रांसलेशनल स्पीड v है, then there is a clear cut relationship which exists between v and omega at any time। चाहे एक्सेलरेट कर रही हो, चाहे डिसलरेट कर रही हो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, ओमेगा और v के बीच में हमेशा प्योर रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क और अ सिलेंडर इज गिवन एज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो अब v वेरिएबल को तो मैं रखना चाहता हूं,
इसको हटाना नहीं है, मैं ओमेगा को हटाना चाहता हूं, तो ओमेगा 2 को कैसे हटाऊं मैं, अब आप बताओ, हाउ शुड आई रिमूव इट? मैं v को क्यों रखना चाहता हूं, क्योंकि v निकालना है। बताइए ओमेगा 2 को क्या किस चीज से रिप्लेस करूं? V2 by R. अपॉन आर। This becomes v2 अपॉन r। का होल और स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा 2 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया। अब हो गई ना अपनी समस्या हल। यस ठीक है। सर। अच्छा, अब इस आई का क्या करें? आई क्या चीज है? व्हाट इज आई? Moment of inertia. The moment of Of inertia of the rolling object, and the rolling object is a cylinder। इसको तो फ्रंट व्यू में दिखाया हुआ है, लेकिन जो रोल कर रहा है और जो आगे को चल रहा है वो एक सिलेंडर है। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड? इसका MR मोमेंट square. फॉर्मूला क्या है? MR square by 12. MR square by 12. mr/2। ठीक है। तो अब अपन को आई को रिप्लेस करने का भी लॉजिक मिल गया है। सो आई विल रिप्लेस दिस ऑल्सो। आई विल रीराइट द होल इक्वेशन, समेशन ऑफ द वर्क डन बिटवीन 1 to 2 by all the forces must be equal to हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की जगह पे रख दूंगा एम आर स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय वी टू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, दिस बिकम्स हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी टू स्क्वायर। ठीक है क्या? यस सर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? अब दोनों एम वी टू स्क्वायर आ गए। व्हाट इज द टोटल ऑफ दीज टू थिंग्स? 3/4। एम अपने को पता है, v2 निकालना है। अब चलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। अब आपको सारे फोर्सेस का वर्क डन का सम निकालना है 1 से लेकर 2 पोजीशन के बीच में, और उसको सिंपली पुट कर देना है 3/4 एम वी टू स्क्वायर के बराबर। अब इतना सा काम रह गया अपना। अब अपना पूरा अटेंशन अब लेफ्ट हैंड साइड पे। लेट अस फोकस ऑन दिस क्वांटिटी नाउ। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम 100 न्यूटन तो कांस्टेंट लग रही है आगे को, तो एक फोर्स तो हो गई 100 न्यूटन। ठीक है। दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है और कहां लग रही है, ये आप बताओ मुझे। सर स्प्रिंग लगा रही है जो। स्प्रिंग लगा रही है, किस डायरेक्शन में लगा रही है और किधर लगा रही है? क्या इस सिलेंडर के सेंटर पे लग रहा है क्या? किस जगह पे लग रही है सिलेंडर के स्प्रिंग फोर्स, ये बताओ। यहां पे लग रही है, सर टेंजेंशियली अपर साइड। टेंजेंशियली अपर साइड पे लग रही है। इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड और फॉरवर्ड? बैकवर्ड सर। बैकवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स, अब ये मानो कि इनिशियल पोजीशन से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी लेट अस से 1, और फाइनल पोजीशन पर अभी पहुंची नहीं है। अपन ने एक इक्वेशन बनाने के लिए ये माना कि अभी ये कितनी दूर आ गया है, x डिस्टेंस की दूरी पे आ गया है टेम्पोररीली। अब ये x पे हो चाहे 2 पे हो, 100 तो 100 ही रहेगा। स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या कहोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स एट अ लोकेशन ऑफ x अवे फ्रॉम पॉइंट नंबर 1? kx माइनस kx सर। ठीक है, अपन ने अभी पीछे को एक वेक्टर को लगा दिया है और आपने आंसर दिया है।
आपने ये आंसर दे दिया, यही काफी है। हालांकि ये गलत है, बट आई एम हैप्पी अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि आपने अभी तक के कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए। अब इसमें ये के एक्स नहीं होगा, 2kx होगा। अब ये जो रीजन है इसका, ये मैं देता हूं, और ये अब आपको एक नई सीख मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट, और ये काफी एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स भी इस कॉन्सेप्ट में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, तो इसीलिए ये मैंने न्यूमेरिकल खास तौर पे सिलेक्ट किया है, बिकॉज इट क्लियर्स अ लॉट ऑफ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। अब ये के एक्स की बजाय 2kx क्यों हुआ एक्स डिस्टेंस पे, इसको समझते हैं। इसको ध्यान से सुनना, ये आपके आगे के टाइम तक आपके कॉन्सेप्ट्स में सहायता करेगी ये चीज। अगर मैं इस स्प्रिंग को ऊपर लगाने की बजाय यहां सेंटर पे अटैच कर देता और यहां पर इसके 100 न्यूटन फोर्स लगाता, और फिर कहता कि भाई ये तो इनिशियल पॉइंट थी, अब एक फाइनल पॉइंट, सॉरी फाइनल पॉइंट नहीं, एक एक्स डिस्टेंस आगे ये चला गया है, इस पॉइंट पे मेरे को बताओ कि स्प्रिंग फोर्स कितनी। तो आपने देखा स्प्रिंग कितनी खींची, एक्स डिस्टेंस से खींची, तो एक्स डिस्टेंस से खींची हुई स्प्रिंग पीछे को कितना फोर्स लगाएगी, कि एक्स फोर्स लगाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। बट एवरीथिंग चेंजेस when instead of attaching the spring at the center, you attach it at the top or the bottom. सेंटर पे लगाने की बजाय आपने इसको ऊपर लगा दिया, तो एक फिनोमिनन और होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, एक डिस्क या सिलेंडर लिया है आपने आर रेडियस का। अब मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये है, when the disk rolls on the surface without slipping and it has rolled one complete revolution, how much distance will the center of the disk travel in doing so? क्वेश्चन समझ में आया? आर रेडियस का डिस्क है, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, और अगर इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की दूरी कितनी होगी? 2 pi r। इट इज 2 पाई। ठीक है, अब अगर मैं इस टॉप पॉइंट पे एक धागा बांध दूं, ठीक है, मेरे पास में खूब सारा धागा पड़ा है यहाँ पे, और उस धागे को मैंने यहां पर अटैच कर दिया, और अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इस धागे के साथ इसको रोल करने को अलाउ करो। अब यहां पर आपने एक चेक पॉइंट लगा दिया है, और यहां पर आप देख रहे हो कि कितना मीटर धागा आपके हाथ से गया, या कितना रोल हो गया। अब वापस से आपने एक रेवोल्यूशन इस डिस्क को रोल करने के लिए अलाउ किया, तो ये रोल होते 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 यहां तक आई। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप में से कोई पता लगा सकता है कि इस पॉइंट से कितना मीटर धागा आगे गया है, या फिर इस धागे का मोशन कितना है? देखो, अगर ये धागा मैंने सेंटर पर लगा दिया होता, अगर ये धागा इसके सेंटर से अटैच कर दिया होता, तब तो आंसर फिर वही आता, 2 पाई r। ठीक है, लेकिन मैं धागा अगर ऊपर बांधता हूं, तो इसमें एक चीज जो अपन सोच नहीं पाते, द थिंग दैट वी डू नॉट have the capability to intuitively guess, not all of us but some people do, 4 pi r। it will be 4 pi r। अब इसका रीजन बताओ क्यों, रीजन भी बताओ। 4 pi r कैसे हो गया? ऊपर बांध दिया तो 4 pi r हो जाएगा, बीच में बांधा सर तो हो जाएगा। सर वो डिस्टेंस ट्रेवल भी करेगी और एक चक्कर अपने अपने ऊपर भी लपेटेगी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। किसने बोला ये आंसर? सर मैंने। चौधरी संजय, वेरी गुड, एक्सेलेंट थिंकिंग। भाई आप, क्या चीज अपन इसको कंसिडर नहीं कर पाते? देखो, ये एक रेवोल्यूशन के बाद में अगर आप इस डिस्क की लोकेशन देखोगे, तो जहां आपने धागा बांधा था वो पॉइंट वापस से आपको ऊपर ही अपियर होगा। ठीक है, तो यानी कि धागा इतना डिस्टेंस तो खिंच गया ही है, इसके प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण। ये धागा यूं घूमता 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 जब वापस इधर आएगा, तो अब ये पॉइंट यहां नजर आएगा आपको।
तो एक रेवोल्यूशन में धागा इतना तो आगे चला ही गया, वो कितना है 2 πr। लेकिन एक चीज अपन भूल जाते हैं कि धागा साथ में इस गोले पे लिपट भी रहा है एक रेवोल्यूशन में। तो एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस के बराबर का धागा इस पे लिपटा हुआ भी मिलेगा, और एक रेवोल्यूशन की लीनियर डिस्टेंस की ट्रेवल भी दिखेगी। तो टोटल कितना धागा इस पॉइंट से आगे को खींचा गया, इट इज 2 πr प्लस 2 πr। तो इसीलिए अब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको अब माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझ में आ गया है। जस्ट रिमेंबर, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी मैकेनिक्स में ट्रिकी बनाई जाती हैं। आप ये समझ लेना, कभी भी डिस्क के ऊपर कोई चीज या नीचे कोई चीज कनेक्ट कर दी और आपसे पूछा कि इतने रेवोल्यूशन में या आधे में, एक में, कितने में भी इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डबल ऑफ वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में सेंटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका डबल ट्रेवल करेगी ये वाली पॉइंट। बस इतना सा लॉजिक है। सो नाउ गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम, जहां पर अपन ने ये कहा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस की ट्रेवल कर ली सेंटर ने, तो ऊपर वाले पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 2x Okay. travel किया। So the distance traveled by the top point is not x, it is actually 2x। अब अगर k आपके स्प्रिंग का कांस्टेंट है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2x है, तो टोटल स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, k इंटू एक्स नहीं होगी, k इंटू 2x होगी। और इस कारण से जो बैकवर्ड स्प्रिंग फोर्स है दैट इज नॉट kx बट 2kx। अब ये ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके इस स्प्रिंग को सेंटर पे लगा दूं तो स्प्रिंग फोर्स 2kx नहीं होगी, कितनी होगी, kx हो जाएगी वापस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। अब x की जो वैल्यू है वो आप कितनी रखोगे, ट्रेवल हुआ है 1 से लेकर के 2 तक, और 1 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5। 0.5। ठीक है, तो 0.5 अब आपका x हो गया। दो ही फोर्सेस हैं, एक पीछे को स्प्रिंग फोर्स लग रही है और एक आगे को 100 न्यूटन लग रही है। अब आप मेरे को वर्क डन बता दो। वापस से अपन अपनी इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, ये इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। The total work done from point 1 to 2 by all the forces between them must be equal to 3 by 4 m v2 square। अपन को v2 निकालना है इस इक्वेशन से, 3 by 4 m v2 square। डायग्राम आपने बनाया, the backward force is 2kx, the forward central force is 100। ठीक है, the distance traveled total x is equal to 0.5। बता दो भाई, दो ही फोर्स है, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, और इसको अब आप क्या करोगे, इट शुड नॉट बी रिटन एज 2kx की फोर्स 0 से लेकर के 0.5 डिस्टेंस तक चलेगी। तो आपकी जो स्प्रिंग फोर्स है, आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करो। फोर्स ऑफ स्प्रिंग इन जनरल आप हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग को अब की बार आप लिखोगे हाफ ऑफ के 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉरी, नॉट नॉट फोर्स ऑफ स्प्रिंग, अगेन आई वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग तो k इंटू 2x है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, हाफ ऑफ k इंटू 2x का स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं होगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग वर्क ये है,
लेकिन आपके केस में x जो है स्प्रिंग के लिए वो 2x है, तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ ऑफ k इंटू 2x का स्क्वायर होगा। ये ठीक है क्या, समझ में आया? यस सर। और वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स कितना है? वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स कितना है? 50। 100 इंटू एक्स, ठीक है। और x आपका 0.5 है, तो आपका आंसर 50 आएगा, सही है। तो अब इसको इसमें पुट करें, समेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, इसको कैसे लिखोगे बताओ? हाउ विल यू राइट इट? 50 अब माइनस 1 बाई आपको 2x का होल स्क्वायर। 100 इंटू 0.5, ये तो पॉजिटिव वर्क है, माइनस हाफ ऑफ, अच्छा अब के भी डाल देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 50 न्यूटन पर मीटर, ये एसआई यूनिट्स में है। हाफ ऑफ के इंटू 2x का स्क्वायर। अच्छा 2x कितना है ये बता दो? x अगर 0.5 है तो 2x कितना हो गया? 1। 1। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका समेशन ऑफ ऑल वर्क। यू पुट दिस इक्वल टू 3/4। अब मास ऑफ डिस्क कितनी दी हुई है? मास ऑफ सिलेंडर 10 kg, तो 3/4 इंटू एम यानी कि 10 इंटू V2 का स्क्वायर। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। 100 इंटू 0.5 इज 50, माइनस हाफ ऑफ 50 इंटू 1 का स्क्वायर, इट बिकम्स 25, दैट इज 25 इज इक्वल टू 3/4, सॉरी 3/4 इंटू 10 इंटू V2 स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, क्या आएगा? बताओ कितना आ रहा है ये? √10/3। सर 1.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक है आंसर? यस यस सर। सर। आपको समझ में आया? इसमें वही सेम चीज है, बस इसमें थोड़ा सा फेर किस चीज का था, ये स्प्रिंग ऊपर लगी हुई थी, तो आपको सिर्फ इतना लेना था कि स्प्रिंग की जो वर्क डन है वो तो पहले से ही रटी हुई है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर है, एंड सिंस इट इज द वर्क ऑफ स्प्रिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको माइनस लेना है, ये भी अपन को पता था। इसमें सिर्फ ट्रिक इतना ही था कि इस केस में चूंकि स्प्रिंग ऊपर लगी है, यहां पर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर न लेकर के आपको क्या लेना पड़ेगा? हाफ ऑफ के इंटू 2x का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है, जब आपका डिस्क का सेंटर x डिस्टेंस से आगे जाता है, तो स्प्रिंग जहां पर अटैच्ड है वो 2x डिस्टेंस से आगे जाएगी। बस सिर्फ इतना सा ट्रिक है, बाकी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसमें बिल्कुल नॉर्मली लगी है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स 100 न्यूटन तो वही रहेगी, 100 इंटू एक्स। इसका होगा हाफ ऑफ के 2x का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में एक लॉजिक आपने लगाया कि रोटेशनल भी ऐड होगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। अब ये जो है, ये आपको मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर करा दी जो जो आइट्रेशन और जगलिंग करके आरटी वाले आपके बना सकते हैं क्वेश्चन। बट आई सजेस्ट कि आप अपनी नॉलेज को सिर्फ इसमें लिमिट मत रखो कि भाई सर ने हमें 2-3 दिन बैठ के सारी प्रॉब्लम्स करा दी है तो हम यही पढ़ लेंगे। दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन बाय टेकिंग अप द टेक्स्ट बुक्स। तो आप लोग कम से कम, जैसा मैंने कहा, एक टेक्स्ट बुक तो पूरी सॉल्व करें। और अपन ने ये डिसाइड किया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास इटसेल्फ, वी हैड डिसाइडेड दैट भाविकट्टी इज अ गुड इनफ बुक। उसमें ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। डीपी शर्मा की बुक में से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन डीपी शर्मा का है, और ये तो भाविकट्टी का ही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम भाविकट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था आप अपने आप करेंगे। द मास ऑफ 10 kg, यू हैव टू डू इट।
ये क्वेश्चन भी शायद भावी कट्टी का है। हाँ यस, भावी कट्टी लिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई ट्राई टू टेक फ्रॉम भावी कट्टी और बंसल, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा सा एवरेज रहता है। डीपी शर्मा की बुक के अंदर आप ये मान लो आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे ज्यादातर आपको। और ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया, ये देखो, ये प्रॉब्लम 11.1 है। यानी कि डीपी शर्मा की किताब चालू ही इस तरह की प्रॉब्लम से करती है। इसमें अपन को कितना टाइम लगा इसको पूरा समझ के, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें। देखो, सिलेंडर के अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट था, काइनेटिक एनर्जी में समेशन का कॉन्सेप्ट था कि आपको रोलिंग और उन सब का एक साथ लेना है। तो इसलिए डीपी शर्मा मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, नॉट फॉर एवरीबॉडी। और मैं आपको रोक भी नहीं रहा हूं। अगर आप के अंदर पेशेंस और टाइम है, you definitely go ahead and try to solve or read the at least read the solved examples from डीपी शर्मा। वो आपकी आरटीयू के अटेम्प्ट को बिल्कुल कंसोलिडेट कर देगी। आपको मतलब मैकेनिक्स में फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफी टफ हैं इसकी। बट एटलीस्ट जो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, वो कम से कम भावी कट्टी को सॉल्व जरूर करें, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स सारे पढ़ के जाएं। Okay, having said that, I will stop the lecture here. Please don't go away. Let me record your meeting.